Hello everyone, I Tejas Goyal, PGT Biology. Today presenting you on the topic of genetic and evolution, unit number 5. So today we gonna learn about the molecular basis of inheritance. In the previous video, we learned about the replication and transcription and genetic code. Now today we gonna learn about the translation. What is translation? When mRNA is used to make protein. जब mRNA का यूज़ किया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए. All of you all know that protein help us in the building of body system. Like our every organ is made up of fat, carbohydrate and protein. So protein plays an important role in the functioning and the body part, major role play. Where does translation happen? At ribosome. So we're gonna start types of RNA. For the formation of protein, we require different type of RNA: mRNA, tRNA, and rRNA. mRNA called messenger mRNA. Message means the transfer of message in the form of code from one place to another place. Like the formation of mRNA takes place inside the nucleus and the formation of protein take place in the cytosol. Carries genetic information from the nucleus to the ribosome. Every 3 base pair codon specify an amino acid. Now moving forward to tRNA, transfer RNA. tRNA मतलब ट्रांसफ़र आरएनए. मतलब इसका काम क्या होता है कि भी जो चार्ज अमीनो एसिड होते हैं उनको लेकर आता है और बाइंड करवाने में हेल्प करता है. ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो एसिड, द ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो एसिड टू ग्रोइंग प्रोटीन. क्लोवर लीफ लाइफ स्ट्रक्चर इसका ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है. क्लोवर लीफ लाइफ मतलब लॉन्ग जैसा होता है. 3 कॉम्प्लीमेंट्री बेस एंटीकोडोन बाइंड टू दी mRNA. मान के चलो ये एक mRNA की चेन है, ये एक आया तो 3 इसके पास बेस पर हुए. दीज आर एंटी और दीज आर codon, these are anticodon. And what is RNA? RNA is ribosomal RNA. Ribosome is the factory for the formation of protein. With the help of mRNA and tRNA, ribosome make up the bulk of ribosome. Like yesterday we learned about the 70s RNA and 80s RNA. 80s RNA in eukaryotes and 70s RNA in prokaryotes. Now moving forward, the function. mRNA brings DNA the instruction to make protein, as we discussed now, and tRNA the transfer move of amino acid to the ribosome. मतलब जो ये tRNA है ये mRNA के पास जाता है, बाइंड करता है और tRNA को लेके आने में हेल्प करता है राइबोसोमल के साथ. मतलब क्या है, मान के चलो ये एक DNA है, ये राइबोसोम है, ये बीच में होगा, tRNA आएगा इधर बाइंड करेगा और यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट देगी प्रोटीन की. सो वी गोना लर्न अबाउट दी फॉर्मेशन. Suppose that is nucleus and the DNA came out through the nucleus. Like that is nucleus. Like that is nucleus and the DNA came out of the nucleus. मतलब mRNA से बाहर आ रहा है. कहाँ पर आ रहा है? साइटोप्लाज्म में. कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में हमारे पास सारा क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है जो है mRNA बाहर आ रहा है. अब mRNA कंटेन करता है एक सीक्वेंस. क्या कंटेन करता है? सीक्वेंस AUG, UUC, AAA. AUG code for methionine and this is called start codon. That is called start codon. मतलब जो ये AUG है, अगर ये कोड नहीं होगा तो हमारा जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट नहीं होगा. तो AUG का होना कंपलसरी है. तो हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर किसकी. ऐसे करके हमारे पास 2 राइबोसोमल यूनिट होगी. हमने पढ़ा था, मान के चलो 80S सब यूनिट है तो ये क्या होगी 60S और ये क्या होगी 40S. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो हमारा ये स्ट्रक्चर होगा, नीचे वाला जो हमारे पास राइबोसोमल यूनिट है यहाँ पर आकर एक mRNA की जो चेन है वो अटैच हो जाएगी. जो ये mRNA निकल के आया तो ये स्मॉल एंड पर हमारे पास सिंपली फॉर्म के अंदर ये हमारे पास क्या आ गया 40S.
क्या, RNA, स्मॉलर सब यूनिट। एंड देन ऊपर आगे क्या बाइंड हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 60S, वी आर टॉकिंग अबाउट दी यूक्रियोट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टीआरएनए आके यहाँ पर बाइंड किया और ये एंटी कोडोन लेकर आया, दैट इज कोडोन, दैट इज एंटी कोडोन, और यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी आगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ribosomal assemblage at the start codon complementary tRNA molecule pair with the exposed codon। अब जैसे आपने ये मॉलिक्यूल देखा, ये tRNA है और ये लेकर आ रहा है लाइसिन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू AAA, that is start codon and that is tRNA that code for AUG code for methionine, and the anticodon UAC bring methionine to the start codon, this called anticodon and this called codon, right? सबको समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है फंक्शन हमारा? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज लार्ज यूनिट, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। यहाँ पर mRNA आया, अटैच हुआ, अटैच होने के बाद सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो ये साइट है, ये जो साइट है, 3 साइट है, यहाँ पर आके हमारे डिफरेंट mRNA अटैच कर रहे हैं। तो हमारे पास जो राइबोसोम होते हैं उसके पास हमारे पास 3 साइट होती है। फर्स्ट वन इज P साइट, फर्स्ट वन इज P साइट, A साइट, E साइट। जो हमारा पहला tRNA होता है वो P साइट पे आकर अटैच करेगा, ठीक है। देन वो क्या करेगा A साइट पे, देन वो E साइट से एग्जिट कर जाएगा, पहले P से, फिर A से, फिर वो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, यहाँ से पहले अटैच होगा, यहाँ से हमारी क्या है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होती चली जाएगी। तो हमने इसके बारे में देखना है। तो हमने क्या बात करी, यहाँ से आकर अटैच हुआ, देखो ये कोड लेकर आ रहा है, ये जैसे धीरे धीरे करके चेन बाहर निकल रही है, 1 2 3, ये आएगा चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां। तो धीरे धीरे करके ये आते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे, और जो ये आ रहे हैं बाहर निकलते जा रहे हैं, क्या चेन लेकर हमारे पास बाहर निकलते जा रहे हैं। द ट्रांसलेशन प्रोग्रेस इनकॉम्परेट 20 डिफरेंट अमीनो एसिड इन द प्राइसिस सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय द 3 बेस कोडोन built from an alphabet of 4 base, the process in the ribosome built by the polypeptide chain that will become प्रोटीन। अब जो ये अमीनो एसिड, ये सिंगल अमीनो एसिड थे, टीआरएनए की हेल्प से आए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक धीरे धीरे करके एक चेन बना लेंगे, किसकी, प्रोटीन की। तो जैसे जैसे छोटे छोटे ये हमारे पास सीक्वेंस है, ये सिंपल अमीनो एसिड सीक्वेंस है, तो ये आपस में जुड़ तो जाएंगे, क्या बन गए, ये एक प्रोटीन की चेन बन जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो हमने सिंपल देखा था कैसे, ये मान के चलो न्यूक्लियस है, ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ से जो एमआरएनए निकल रहा है, प्री मैच्योर एमआरएनए, फिर मैच्योर हुआ, स्प्लाइसिंग हुई, एंड हम बात करें कैपिंग हुई, टेलिंग हुई। तो यहाँ से निकल रहा है हमारे पास क्या, एमआरएनए निकल रहा है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, राइबोसोमल सब यूनिट के पास, और धीरे धीरे करके टीआरएनए क्या लेके आएगा, हमने कल पढ़ा था टीआरएनए क्या लेके आएगा, चार्ज अमीनो एसिड, दैट इज क्या होंगे, एंटीकोडोन स्पेसिफिक होंगे, क्या होंगे, एंटीकोडोन स्पेसिफिक होंगे। तो जैसे ये टीआरएनए आया, ये जो सीक्वेंस की कोडोन होगा इसके स्पेसिफिक है, ये वाला इसके स्पेसिफिक है, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके, तो सो ऑन करके हमारे पास स्पेसिफिक टीआरएनए हमारे पास चलते रहेंगे। तो हमने सिंपल फॉर्म में देखते रहना कि भी आते रहेंगे, अटैच होते रहेंगे, अटैच होते रहेंगे, लेकिन किसके साथ में होंगे, सिर्फ राइबोसोमल सब यूनिट पे। जो हमारी ये चेन है धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी, ये राइबोसोम यही रहेंगे, लेकिन ये चेन है धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी, सिंपल सी बात है। Now moving forward, next topic is lag operon model. We're gonna learn about the gene regulation. In this, we know about the gene expression. A single gene control many genes, and a single gene incorporate the functions of our body, like the formation of any compound, any enzyme, any protein kind of. They help in the regulation of our body. So, what is lag operon model, and who describe the lag operon model? What is lag operon model and who describe the lag operon model? तो बात करें जैकब और मोनोड ने लैग ओपेरॉन मॉडल को डिस्क्राइब किया था, इसके अंदर हम जानेंगे कि उसने काम कैसे किया था। सो इन लैग ओपेरॉन मॉडल देयर इज सम
gene, there is some gene we called regulatory gene, promoter gene, operator gene, and the structural gene. Regulatory gene denoted with I, and promoter gene with P, operator gene with O, structural means structural gene, and they play different function according to the requirement. They play different function according to the requirement. And regulation of genes means that some of mRNA products help in the formation of other gene to make protein. मतलब जो ये रेगुलेटरी जीन है ये एक ऐसा mRNA बनाएगा और उससे ऐसा एक प्रोटीन निकलेगा जो रेगुलेट करेगा जीन प्रोटीन के फंक्शंस को. अगर ये से अटैच हो जाता है तो हमारी प्रोसेस आगे नहीं होगी. अगर ये से अटैच नहीं होता है तो हमारी फंक्शन जो है वो प्रोसेस हो जाएगी. लाइक वी गोना नो रेगुलेटरी प्रोटीन जो mRNA डिस्क्राइब करेगा विद द हेल्प ऑफ DNA पॉलीमरेज, हमें यहाँ से मिल जाएगा एक प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन वो एक्ट कर रहा है क्या, रिप्रेसर. जो रिप्रेसर है वो जाके बाइंड किससे करेगा, ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड करेगा और इसे क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा. अभी ऑपरेटर रीजन ब्लॉक हो गया तो यहाँ पर mRNA की जो कि हमारे पास यहाँ पे साइट है उससे DNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा. उससे क्या नहीं बाइंड कर पाएगा, DNA पॉलीमरेज कांट बाइंड एंड द फॉर्मेशन विल स्टॉप. But in some cases, when mRNA repressor is formed, we got inducer which suppress the function of repressor, which suppress the function of that protein, and the operator will freely form and lead to the formation of three type of enzyme. So these are galactosidase, lactose permease, and thermocyl atellase. These formation in the prokaryotes case. We have only the case of prokaryotes. I hope everyone gonna understand this topic. Thank you and have a nice day.